Assalamu alaikum class 6. Welcome to the 11th lecture of computer. I'm your teacher Sara Nadeem. I hope you all will be fine and safe at your homes. In the previous lecture we did the book exercise which is based on MCQs only, and we also started the comprehension of chapter number 2, and we did the first 5 questions of comprehension, and in today's lecture we're going to continue the comprehension. There are total 11 questions of this chapter. So this is the list of question number 6 to 11. Question number 6 is explain parts of keyboard. Question number 7, what is the difference between hard copy and soft copy? Question number 8, what are output devices? Give examples. Question number 9, what is monitor? Question number 10, what is a scanner? Question number 11, what is printer? So question number 6, explain parts of keyboard. Okay, so this question is based on the extra topic which is included in this chapter, which is the parts of keyboard. In that topic we read about the 4 parts of keyboard, which are alphanumeric keyboard, numeric keys, cursor control keys, function keys. So to answer this question, first of all you will give the heading of parts of keyboard with the marker. Then write a general line. I have wrote it down here, just the 4 parts, but you will write the complete line that there are 4 parts of keyboard. Okay, then give a heading with the number 1 point, alphanumeric keyboard, and then write down the definition of alphanumeric keyboard. Okay, then give heading for number 2 point, numeric keys, and then write down the full definition of numeric keys. And then number 3, cursor control keys, heading of cursor control keys, and then the definition of cursor control keys. And then number 4, function keys, and then also the definition of function keys. Okay, so these are the 4 main parts of keyboard. You can take help from the topic you have wrote it down on the book. Then also this topic also consists of special purpose keys. Okay, we also read about the special purpose keys, basically 3 special purpose keys in this chapter, in this included topic. First one is the enter key, caps lock key, and then the control key. So you will also discuss all these 3 keys in this answer. Okay, give the heading of enter key and then write the definition of enter key. Then also same with the caps lock. Write the heading of caps lock key with the marker and then the definition of caps lock. And then the last special purpose key, control key, give the heading CTRL. Okay, then the definition of CTRL. Okay, CTRL की basically control की होती है, लेकिन उसको short form में कंप्यूटर में कीबोर्ड में CTRL के उसमें लिखा जाता है, और इसीलिए हमको CTRL नहीं, लेकिन बेसिकली इसका नेम इसका कंट्रोल की होता है. हमने बहुत डिटेल में पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड सारे पढ़े थे. अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड वो पार्ट जो कि सारा अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स पे बेस करता है. न्यूमेरिक कीज वो कीपैड जो साइड पे होता है सिर्फ नंबर्स पे बेस कर रहा होता है, जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं और कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं कैलकुलेशन के, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. एंड देन कर्सर कंट्रोल कीज जिसमें अप, डाउन और लेफ्ट और राइट एरो कीज आ जाती हैं. एंड देन द फंक्शन कीज जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं. ओके, सबको आपने डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे सब पार्ट्स की इस तरह से. और स्पेशल पर्पस कीज में भी एंटर की, जो कि किसी भी एंटर करने के लिए और उसके लिए यूज होती है. देन कैप्स लॉक की, कैपिटल अल्फाबेट में करने के लिए, जब भी हमने किसी अल्फाबेट को कैपिटल में लिखना है तो उसके लिए कैप्स लॉक की यूज होती है. एंड देन द कंट्रोल की को हमेशा हमने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन के साथ हमेशा यूज किया जाता है. सो आपने इन सबकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है, और आप हेल्प ले सकते हैं उस टॉपिक से जो कि आपने बुक में लिखा था, मैंने आपको लिखवाया था और आपने अपनी बुक्स पर नोट डाउन किया था टॉपिक, पार्ट्स ऑफ keyboard का topic. Okay, then question number 7, what is the difference between hard copy and soft copy? Okay, this question is based on the difference of hard copy and soft copy. Every time whenever you're going to write about एनी डिफरेंस, ओके, किसी भी चीज़ के डिफरेंस के बारे में आपने लिखना है तो आपने टेबल बनाना है, 2 कॉलम बनाने. फर्स्ट यहाँ पे जैसे डिफरेंस है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में, तो आप फर्स्ट कॉलम बनाएंगे हार्ड कॉपी के बारे में, ऊपर हेडिंग देंगे हार्ड कॉपी की, एंड देन सेकंड कॉलम विल बी फॉर द सॉफ्ट कॉपी. ओके, देन इन द हार्ड कॉपी कॉलम यू विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हार्ड कॉपी, एंड देन इन द सॉफ्ट कॉपी यू विल राइट डाउन द होल डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट कॉपी. ओके, हार्ड कॉपी के बारे में हमने पढ़ा था, आई थिंक प्रिंटर के टॉपिक में, ये आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं. और सॉफ्ट कॉपी के बारे में हमने पढ़ा था मॉनिटर के टॉपिक में, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं. हार्ड कॉपी वो होती है जो हमें प्रिंटर से मिलती है, प्रिंट होके पेपर के ऊपर प्रिंट होके हमें मिलती है. एंड सॉफ्ट कॉपी वो जो कि हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे हम जो देखते हैं आउटपुट को, उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. ओके, सो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं बुक से.
Question number 8. What are output devices? Give examples. Okay, for this question, first of all, give the heading of output devices with the marker. Okay, and then write down the definition of output devices. Okay, then give the heading for examples, and you can write any 3 examples of the output devices. Okay, हमने अपनी बुक में 4 to 5 I think 5 output devices पढ़ी हैं. आप किसी भी 3 के नेम लिख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस के. ओके, आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन भी 2 जगह लिखी हुई थी. आप कहीं से भी आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन ले सकते हैं और उससे हेल्प ले सकते हैं और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस को. देन क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज मॉनिटर? ओके, मॉनिटर हमने आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ा था, तो सब इसके लिए भी सब फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द हेडिंग ऑफ मॉनिटर विद द मार्कर. एंड देन मॉनिटर के बारे में हमने जो भी पढ़ा था वो आपने यहाँ पे लिखना है. जैसे ये आउटपुट डिवाइस होती है, उसके अलावा हमने विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बारे में पढ़ा था, आपने उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. और फिर हमने ये भी देखा था कि टीवी स्क्रीन की तरह सिमिलर होता है और टेक्स्ट और पिक्चर्स दोनों को डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर को यूज़ किया जाता है. तो आप ये तीनों चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इसमें, यहाँ पे मॉनिटर के पार्ट में. हाँ, मॉनिटर के पार्ट में हमने सॉफ्ट कॉपी पढ़ी थी, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आप लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, जस्ट मॉनिटर के बारे में आप लोग यहाँ पे लिखेंगे. Okay, then question number 10. What is a scanner? It's a very short question. First of all, give the heading of scanner. Okay, scanner basically एक input device होती है. हमने input devices में पढ़ा था scanner को. यहाँ पे भी आप heading दे scanner की. Then आपने जो भी scanner की छोटी सी definition हमने पढ़ी थी पेज नंबर 11 पे scanner की, वहाँ से help लें, उसको explain कर देंगे. scanner scan करने के लिए use होता है. जो भी एक तो सबसे पहले आपने ज़रूर बताना है, कोई भी आप डिवाइस के बारे में लिखने लगें तो आप उसमें ये ज़रूर बताएं कि वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है फर्स्ट लाइन में. ओके, देन आप उसके बारे में बताएं कि इसका फंक्शन क्या है, कि इट अलाउज यू टू स्कैन और ट्रांसफर फोटोज, हैंड ड्रॉन पिक्चर्स और टेक्स्ट इनटू योर कंप्यूटर. कि स्कैनर का बेसिकली काम होता है, जो कि आपने बहुत डिटेल में हम लोगों ने तब पढ़ा था इसको, तो आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पे. दैट्स इट. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज प्रिंटर? तो प्रिंटर में हमने ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का प्रिंटर का. ओके, हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस में, तो यहाँ पे भी आप सबसे पहले बताएंगे इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस. ओके, देन फिर आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे प्रिंटर का काम क्या होता है, कि पेपर को जो आउटपुट है उसको पेपर पे डिलीवर करना. तो यहाँ पे प्रिंटर के बारे में आप ये लिखेंगे. देन विल ऑल्सो राइट डाउन द टाइप्स ऑफ प्रिंटर. सो फॉर दैट write down give the heading of types of printer. Okay, then in number 1, number 2 and number 3 there are 3 types of printer written down in your book. You can write down the names of the types of printer. So class, that's all for now. This is our today's lecture. Do comprehension question number 6 to 11 on your copies. Okay, and also learn the comprehension, and by doing this we have completed the chapter number 2 also. So thank you everyone. That's all for now. Take care of yourselves. Allah Hafiz.